Good morning all of you. So I am Sharik sir and today I am going to start a chapter of your English language which is direct and indirect speeches. Okay? Before we will begin the chapter or I will explain you the chapter, first let us discuss that what does a direct speech or an indirect speech means, which speeches are known as direct speech and which one is known as indirect speech. So if we talk about direct speeches, so when the actual words of the speaker are quoted, then this form of speech is known as direct speech. For example, he said, comma, double inverted comma open, I am not well, full stop, inverted comma close. See, तो इस सेंटेंस में आपने देखा कि I have expressed the direct speech, which means the actual words of the speaker that he said I am not well is expressed within the inverted commas. So if the speech is written in this form, actual words of the speaker are mentioned, then this type of speech or this form of speech is known as direct speech. Hope you all got it. Then the second one is just opposite of it, which is indirect speech, when the actual words of the speaker are expressed by a person in his own way. ठीक है? तो अगर एक्चुअल वर्ड्स स्पीकर के होंगे और उस स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को किसी सेकंड पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को एक्सप्रेस किया है अपने अंदाज में, इन हिज ओन वे, अपने तरीके से, ठीक है, विदाउट कोटिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, दिस टाइप ऑफ स्पीच इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच. For example, he said that he was not well. ठीक, तो actual speech was I am not well, actual statement, and this actual statement is telling by a person to the third person that he said that he was not well. For example, मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपसे एक्सप्रेस किया कि आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे. ठीक है, उसने कहा ही सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल. ठीक है, तो वो जो पर्सन हो गया आपका फ्रेंड, वो हो गया फर्स्ट पर्सन स्पीकर, और आपसे उसने एक्सप्रेस किया अपने व्यूज को, तो आप हो गए सेकेंड पर्सन. ठीक है, तो आपने एक्चुअल वर्ड्स को जब आप उस स्पीकर के कोट करोगे कि उसने ये कहा था एकदम एक्चुअली दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इट इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच. बट उसी स्पीच को, उसी एक्चुअल वर्ड्स को अगर आप अपने वे में बताएंगे किसी थर्ड पर्सन को, मान लीजिए आपने आके हमसे बताया ही सेड दैट ही वॉज नॉट वेल, कि सर उसने कहा था कि वो ठीक नहीं था, तो इसे आप क्या कहोगे, इस फॉर्म ऑफ स्पीच को कहोगे आप क्या, इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, सो नाउ आई थिंक द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ द indirect and direct speech is clear to you all. Now we will discuss some basic points of the direct and indirect speeches. ठीक है, here I have expressed he said. So this said is a reporting verb. What we call it? We called it reporting verb. RV, reporting verb. And the speech which is within the inverted comma, it is known as कोटेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. इसको आप कोटेड स्पीच भी कह सकते हो और रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हो, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेंशन्ड है. ठीक है, इफ यू आर राइटिंग अ डायरेक्ट स्पीच, तो देयर आर सम बेसिक थिंग व्हिच यू हैव टू लुक टू इट. फर्स्ट वन इज आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब यू हैव टू पुट अ कॉमा, देन you will open a inverted comma, then you will put the punctuation mark before closing the inverted comma. Means आप punctuation mark इस तरीके से नहीं लगा सकते कि आपने inverted comma के बाद punctuation mark लगाया, ये wrong है. आपको क्या करना है, punctuation mark के अंदर, inverted comma के अंदर, before closing the inverted comma you have to put or place that punctuation mark full stop. As it is a assertive sentence, then we will place a full stop and before closing the inverted comma. Hope you all got it.
Now we will go to the explanatory part of the chapter. We will explain that how we can convert a direct speech into an indirect one. Okay. So the first thing which you have to look or consider is that this reporting verb which introduced a reporting speech. Huh? So this is known as reporting verb. Or a sentence which is written within the inverted comma, it is known as reporting speech. Huh? So if we talk about the first thing which we have to consider is that we have to check the tense of the reporting verb. Okay? If you will see or look, the tense which is used here of the reporting verb is past tense. Means the reporting verb is said. If it is says or will say, then it will be in present or future tense. But here it is written he said. So said is written in a past tense. So if the reporting verb is in the past form or in the past tense, then we will change the tenses of the reporting speech according to the rule which I will discuss here in the chapter. And if the reporting verb is in present or future tense, then there will be no change in the tenses of the reporting speech. तो reporting speech के tenses को change हम लोग नहीं करेंगे. For example, if you want to change the tense of the reporting speech here, or if you have to mention the direct speech into an indirect one, how you will write? You will write he, indirect speech, he said, as it is a reporting verb is in a past tense, said. So we will remove the inverted comma and we will remove the double inverted comma, we will remove the comma, we will remove the double inverted comma, and in place of that we will introduce that. Okay? We will introduce what? We will introduce that. Okay? And then we will change the pronoun, form of the pronoun, that we will mention he. I referring to he, na? He said I am not well. So who said I am not well? He said. So I is here directed to he. So we will change the pronoun into he. Got it? He. Then we will change the auxiliary verb into past. Was not well. Hope you all got it. I will explain it in more detail further. So just look to it. I am here only telling you that if the reporting verb in the past tense, then you have to change the tenses of the reporting speech. Got it? And if the reporting verb is in present tense or in future tense, for example, if you will look to it, I change this here. I mention says. For example, I write here says. ठीक है? He says I am not well. उसने कहा मैं ठीक नहीं हूँ. Then how we will change this direct speech into an indirect one? Look here. We will write he tells that he is not well. You see that here when the reporting speech was in the past tense, means when we have mentioned said, then we change the tenses of the speech accordingly. But when the reporting verb is in present tense, says, then there is no change in the tense of the speech. Means here we have using present tense, I am not well, and here I also use the present tense. As we have written here I, so with I we used am, and here we have used he, so we are using is. As you know that with singular we use I, but exception is I and you. With you we use are, and with I we use am. So hope this is clear to you all. I am explaining it in Hindi too. ठीक.
तो अगर हम लोग बात करें किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच की, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, जैसे मान लीजिए ही सेड आई एम नॉट वेल, तो अंदर के टेंसेस को आप चेंज करोगे पास्ट फॉर्म में और अकॉर्डिंगली जो रूल अभी हम आपको बताएंगे उस हिसाब से। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर टेंस में और प्रेजेंट टेंस में, जैसे अभी मैंने यहाँ पे चेंज किया एग्जाम्पल सेट से सेस कर दिया, तो जो स्पीच के टेंसेस हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। पर्सनल प्रोनाउन में चेंज होगा, वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ प्लेस और टाइम उसमें भी चेंज होगा। बट अगर हम लोग बात करें इसमें टेंसेस में, तो टेंसेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे स्पीच प्रेजेंट टेंस में थी, तो यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया स्पीच को प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में। फ्यूचर टेंस में भी होता तो भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे था ही विल से आई एम नॉट वेल, तो यहाँ पर हो जाता ही विल से दैट ही इज नॉट वेल, मीन्स टेंसेस वही रहता। टेंसेस प्रेजेंट टेंस में स्पीच थी तो प्रेजेंट टेंस में ही रहती। स्पीच के टेंसेस में तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में नहीं है तो स्पीच के टेंसेस में चेंज नहीं होगा। होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द चैप्टर। बिफोर गोइंग फर्दर we will discuss that how the personal pronoun change when we convert a speech from direct to an indirect one. ठीक है, I and you will convert into he or she in the indirect speech. We or you will convert into they. Us will convert into them, and my will convert into his or her according to the gender, and R will convert into they. So these are some change in the personal pronoun which you have to do while converting a speech from direct to an indirect one. So now these are some words which express the time or place. ठीक है, so you have convert this to while converting a direct speech into an indirect one in the following way. Tonight will convert into that night. Today will turn into that day. Now become then. Yesterday become the day before or previous day. आप ये भी यूज कर सकते हो, the previous day. Last week, the previous week. Tomorrow, the next day. Here, there. This will become that. These will become those. ठीक है? So these are now some words which you have to change while converting a direct speech into an indirect one. Now we will explain the main portion of the chapter. Okay. So as you know that there are 4 types of sentences: assertive, interrogative, imperative, and exclamatory sentence. So there are different rules for converting each form of sentences from indirect to speech to direct speech. In the beginning we have taken assertive sentences, that how we convert assertive sentences if we have to convert them from direct to indirect one. ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया है, assertive sentence लिया है, क्योंकि रूल हर सेंटेंस में अलग अलग है। हम लोग यहाँ पे पहले क्या लेंगे, assertive sentence लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल प्रेजेंट विल बिकम सिंपल पास्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर assertive सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। ठीक, यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल मैंने लिखा, ही सेड कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन आई ईट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। तो इफ वी हैव टू कन्वर्ट दैट सेंटेंस और दैट स्पीच इनटू एन इनडायरेक्ट वन, हाउ वी विल राइट, ही सेड। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट में, सेड लिखा हुआ है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अंदर जो इस रिपोर्टिंग स्पीच के जो टेंसेज है उसको हमको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सेंटेंस को देखोगे ये किस फॉर्म में, सबसे पहले आपने क्या देखा, रिपोर्टिंग वर्ब देखा। रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट टेंस में। अब दूसरा नेक्स्ट जो स्टेप है वो आप क्या देखोगे कि रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में। अगर आप यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग स्पीच किस फॉर्म में है, रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में है।
सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई ईट एन एप्पल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, और सिंपली लिखा हुआ है, तो ये सिंपल टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक एग्जांपल है। तो अब आपको सेंटेंस को कैसे चेंज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर सेंटेंस है तो आपको उसको किस में बदल देना है, उसको आपको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देना है। कैसे होगा, आप लिखेंगे ही सेड, कॉमा हटाएंगे, कनेक्टिव इंट्रोड्यूस करेंगे, कंजंक्शन कनेक्टिव, दैट डबल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके, और उसके बाद ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, मैंने अभी आपको चार्ट बना के दिखाया कि पर्सनल प्रोनाउन अगर आई लिखा हुआ तो वो किसमें चेंज होगा, ही में या शी में, जो उसको डायरेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आई किसको डायरेक्ट कर रहा है, ही को डायरेक्ट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन में कैसे चेंज लाएंगे, यहाँ पर आई को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ही में कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसको चेंज करने के लिए सेंटेंस को किसमें कर देंगे, पास्ट में कर देंगे, ही एट एन एप्पल, इस तरीके से फुल स्टॉप एट द एंड, और इस तरीके से आपकी स्पीच डायरेक्ट स्पीच से कन्वर्ट हो जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर सेंटेंस आपका क्या है, असर्टिव है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्पीच अगर दी है। तो यहाँ पे ये क्या थी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में थी, तो हमने इसको किसमें बदल दिया, सिंपल पास्ट में। तीन बातों को आपने ध्यान में रखा, पहला रिपोर्टिंग वर्ब किस फॉर्म में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तभी अंदर के अब आप क्या कहोगे, टेंस चेंज होंगे, अंदर के टेंसेस अब देखोगे आप किस फॉर्म में स्पीच लिखी हुई है, रिपोर्टिंग स्पीच लिखी हुई है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज और आपको क्या ध्यान देना है, पर्सनल प्रोनाउन, चेंज इन द पर्सनल प्रोनाउन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी डायरेक्ट स्पीच से जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगी। आई थिंक यू ऑल गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट part is in the assertive sentence. As you know that there are four types of tenses in the present tense only, four types. Simple present tense. Now we will come to present continuous tense. Present continuous tense will convert into past continuous. Means if the reporting speech is in simple present tense, then it will convert into past continuous if only the reporting verb in a past tense. क्योंकि हमने ये बताया कि अंदर के टेंस इस रूल के अकॉर्डिंग तभी चेंज होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो है वो पास्ट टेंस में होगा। यहाँ पे अगर सेंटेंस आप रीड करो, दे सेड, उन लोगों ने कहा, सेड ये क्या है, पास्ट टेंस में, तो अब आप क्या कहोगे, सर अंदर के रूल जो है, जो फॉर्म ऑफ द वर्ब और टेंसेस जो लिखा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच का, उसको अब हम लोग चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दे सेड, कॉमा हट के क्या इंट्रोड्यूस होगा, दैट इंट्रोड्यूस्ड होगा, और वी को आप किसमें चेंज करोगे, दे में, जैसे अभी हमने रूल लिखवाया भी। और अगर आप देखोगे वी किसको डायरेक्ट कर रहा है, दे को डायरेक्ट कर रहा है, दे सेड ना, तो दे आर ये लिखा हुआ है, वी आर, तो इसको पास्ट में सिंपल पास्ट में बदलने के लिए क्या लगा दोगे रूल, आप क्या कर दोगे यहाँ पर, दैट दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक, यही रूल होता है। अगर आप पास्ट कंटिन्यूस में जाएंगे तो क्या होता है, वॉज ओवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, जैसे ये प्लूरल है दे, तो मैंने यहाँ पे वॉज नहीं लगाया, वर लगाया, और साथ ही साथ क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस आईएनजी कंटिन्यूस के लिए, और सेम लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको किसमें चेंज कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस से किसमें चेंज हो गया, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में ये सेंटेंस चेंज हो गया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या है, पास्ट टेंस में, तभी ये रूल अप्लाई करेगा। तो असर्टिव सेंटेंस अगर है और रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट स्पीच में है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, तो ये किसमें बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल जाएगा, व्हाइल चेंजिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू एन इनडायरेक्ट वन। होप यू ऑल गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट। So present perfect will convert into past perfect. Means if the direct speech or the reporting speech is in present perfect tense, then it will convert into past perfect. Got it? I have written an example. He said, I have written a letter. I have written a letter. So have or verb past participle form. So it is in the past present perfect tense. Then the thing which you have to consider is, first one is reporting verb. The reporting verb in the past tense. When the reporting verb is in the past tense, you have to change the tenses of the speeches, है ना? And how you will change the tense? That if it is in the present perfect, then you will convert it into a
पास्ट परफेक्ट व्हाइल कन्वर्टिंग इट इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसको आप किस में बदल दोगे, पास्ट परफेक्ट में बदल दोगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में है, पास्ट फॉर्म में, तो आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, पास्ट फॉर्म में। अब इसको आप चेंज करोगे, ही सेड, कॉमा हटा के आपने क्या लगाया, डैट लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया, डैट लगाया। उसके बाद आई डोनेट कर रहा है ही को, पर्सनल प्रोनाउन में आप चेंज करोगे, ही हो जाएगा आई का ही। हैव आपका किस में बदल जाएगा, क्योंकि आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो हैज और हैव हट के क्या आ जाता है, हैड आ जाता है। ही हैड रिटन अ लेटर, फुल स्टॉप। तो ये स्पीच आपकी किस में बदल गई, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गई, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग स्पीच है और रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, तो आप उसको किस में बदल दोगे, पास्ट परफेक्ट में बदल दोगे। अब आप बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसको मैंने, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये किस में बदल जाएगा, अगर सेंटेंस रिपोर्टिंग विद स्पीच आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो किस में बदलेगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए कैसे, ही सेड आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने बताया ना, पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप जो भी है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगेगा, ना कि बाहर। तो फुल स्टॉप पहले, फिर इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद इसको आपने चेंज किया इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले आपने क्या देखा, सेट रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब सर किसमें है, पास्ट टेंस में। तो सर जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अंदर की जो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंसेज हैं उसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर ये स्पीच दिख रही है तो सर इसको हम किस में बदल देंगे, इसको हम लोग बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो हैव है इसको बस हैड कर देंगे और पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि रूल वही होता है ना। सब्जेक्ट, फिर आपका आ जाता है हैड, फिर आपका आ जाता है बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। तो ये आ गया, आपने लिखा क्या, ही सेड, कॉमा हटा, दैट इंट्रोड्यूस किया, आई को आपने चेंज किया ही में, अभी तक जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। हैव को आपने किस में बदल दिया, हैव बीन राइटिंग को आपने किस में बदल दिया, हैड बीन राइटिंग। और इस तरीके से ये सेंटेंस किस में बदल गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया ये अंदर की स्पीच। और इसी तरीके से डायरेक्ट स्पीच से किस में बदल गई, एक करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस आपका चेंज हो गया। Clear to you all? So now the next portion is we will deal with past tense. ठीक है, how we will convert a direct speech into an indirect one if it is in the past tense. ठीक, so simple past will become past perfect. ठीक है, simple past will become past perfect. This rule will only apply if the reporting verb is in the पास्ट टेंस। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब चेंजेस हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच में तभी करते हैं जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में नहीं होगा तो स्पीच, जैसे मैंने अभी शुरुआत में एग्जांपल देके आपको समझाया कि वैसे ही लिख दी जाएगी एज इट इज, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन में चेंज होगा, ठीक है, और वैसे ही लिख दी जाएगी तो वो सेम वैसे ही लिखेगी। बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो सिंपल पास्ट टेंस में अगर स्पीच है जैसे ये दी हुई है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे ही सेड, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आई एट एन एप्पल। एट पास्ट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, सिंपल पास्ट में यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस स्पीच किसमें है, सिंपल पास्ट में। कॉमा यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए, फुल स्टॉप अंदर लगाइए, ठीक। तो इट विल कन्वर्ट इनटू ही सेड, कॉमा हटा के डैट लगाएंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, रिजल्टिव सेंटेंस को डील कर रहे हैं हम लोग, कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। उसके बाद आई डोनेट कर रहा है ही को, तो दैट ही, पास्ट परफेक्ट में क्या लिखेंगे, हैड ईटेन एन एप्पल, फुल स्टॉप। पास्ट परफेक्ट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट है ना, उसके बाद हैड, फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वही हम लोग ने यहाँ पे यूज किया, जिसको आप थर्ड फॉर्म भी कहते हो वर्ब की, तो सिंपल लैंग्वेज में। तो हम लोग ने यहाँ पे यही यूज किया, सब्जेक्ट यूज किया, हैड यूज किया, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया, और ये सेंटेंस किसमें चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, गॉट इट। पर्सनल प्रोनाउन में ये आई से ही में बदल गया। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर स्पीच दी हुई है और रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए
लिखी हुई है शी सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन आई वाज डांसिंग टुनाइट. वॉज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी है. तो आपने आइडेंटिफाइड क्या किया इसको कि ये सेंटेंस किसमें, स्पीच किसमें, ये पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये किसका रूल होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल होता है. तो यहाँ पे वॉज डांसिंग लिखा हुआ है तो इट मीन द स्पीच इज इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट टेंस में. तो आप इसको रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में तो इसी स्पीच को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. देखिए कैसे, शी सेड दैट शी, आई को आप डोनेट करोगे शी से, क्योंकि आई रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, शी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना. शी सेड आई वाज डांसिंग, तो किसने कहा, शी ने कहा ना. तो शी सेड दैट शी हैड बीन डांसिंग टुनाइट विल कन्वर्ट इनटू दैट नाइट. ये अभी हमने आपको रूल दिया था कि कुछ नियरनेस ऑफ प्लेस और टाइम वाले भी वर्ड्स हैं जो कि चेंज होते हैं. तो टुनाइट इज यूज्ड हियर, तो इट विल कन्वर्ट इनटू दैट नाइट. ठीक है. तो if you will look to it again, then she said that she personal pronoun में change हुआ, then had been dancing. क्यों had been, क्यों, past perfect continuous tense में हमको change करना है. तो past perfect continuous tense का क्या रूल है, subject had plus been plus verb की first form plus ing. subject had plus been plus verb की first form dance और ing, ये हो गया आपका किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया. अब नेक्स्ट पोर्शन की अगर हम लोग बात करें जो कि क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है. अगर आपकी स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में दी हुई है तो वो कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा, एज इट इज वैसे ही कॉपी होगी, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करके. डैट जैसे आप लगाते हो वैसे ही लगाओगे. जैसे कि उसने लिखा है शी सेड आई हैड रिटन अ लेटर, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इसके अंदर कोई भी चेंज टेंसेज में नहीं होगा. आप इसको लिखोगे शी सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर, मीन्स वैसे ही एज इट इज. और यही सेम तरीका आप अपनाओगे किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी. अगर डायरेक्ट स्पीच आपकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दी हुई है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही कि वैसे ही एज इट इज कॉपी होगा, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन में और वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ प्लेस और टाइम उसमें चेंज करके. उसके अलावा टेंसेज में कोई चेंज नहीं होगा. अगर आपकी स्पीच किसमें दी हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दी हुई है और पास्ट परफेक्ट टेंस में दी हुई है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दी हुई है, तो उसको वैसे ही एज इट इज कॉपी करेंगे. होप आई एम क्लियर टू यू. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर वेयर इन द असर्टिव सेंटेंस इफ द स्टेटमेंट इज इन फ्यूचर टेंस और सम मॉडल्स आर यूज्ड, देन हाउ वी विल कन्वर्ट अ स्पीच और सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट to an indirect one. ठीक, I have written some example or before going to the example we will discuss here. Will convert into would, shall becomes should, from direct to indirect speech, can become could, may become might. ठीक है. So I have taken some example to undertake the words. He said, I will come tomorrow. ठीक है. So if you will convert into indirect sentence or indirect speech, how you will write it? He said, inverted comma you will remove as it is mentioned here. Said reporting verb is in past tense. Then this will would convert into would. Got it? He said, comma हटके that introduce किया आपने. He said that I, ही को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ही यहाँ पे लगेगा, पर्सनल प्रोनाउन में चेंज होगा जैसे अभी तक आप लोग करते आए हैं. ही सेड दैट ही वुड कम टुमारो विल रिप्लेस इनटू द नेक्स्ट डे. गॉट इट? इसी तरीके से आप चेंज करेंगे, टुमारो विल कन्वर्ट इनटू द नेक्स्ट डे. और द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एग्जांपल इज डायरेक्ट स्पीच. शी सेड आई कैन डांस. सिंपल सेंटेंस, आई कैन डांस. तो शी सेड, ये सेड किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो ये कैन विल बिकम कुड. तो शी सेड दैट, कॉमा हट के आपने दैट को इंट्रोड्यूस किया, शी कुड डांस. होप आई एम क्लियर टू यू ऑल. द नेक्स्ट सेंटेंस और हाउ वी विल चेंज द, होप आई एम क्लियर टू यू नाउ. द नेक्स्ट पोर्शन which we will consider in our next lecture, which is how we will convert a direct speech into a indirect one
व्हेन द सेंटेंस इज इम्पेरेटिव वन। ठीक है, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे।